بلا شبہ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کی ہمارا تعریف بیان کرتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ رب العالمین راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تمام کاموں میں بدترین کام، تمام کاموں میں برا کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں صرف اور صرف ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی جان سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اس سے بہت سارے مرد عورتوں کو انہی زمین پر پھیلایا۔ رشتہ قطع کرنے سے، رشتہ توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الی المصیر۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں بہنوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ان کے ماں باپ کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، پیرنٹس کے متعلق نصیحت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، اپنے پیرنٹس کی بات مانو۔ حملته امه وهنا على وهن، اور جب حمل سے تمہاری ماں ہوتی ہے، اور جب ہم وہنن علی وہنی یعنی تکلیف پر تکلیف جو برداشت کرتی ہے، اس تکلیف کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے وہنن علی وہن۔ اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت پر، اس ورڈ پر غور کریے کہ تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے ماں۔ والدین کا مقام سب سے بڑا ہے، لیکن خصوصاً ماں کا اس کا مقام بہت بلند ہے۔ فی عامین یعنی اشکر لی ولوالدیک، اور 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ ہی سیکریفائڈ ہز مدر، جب تمہاری ماں تمہیں دودھ پلاتی ہے، تمہاری پرورش کرتی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے کہا اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ الی المصیر، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ایک حدیث ہے ادب المفرد، امام بخاری کی مشہور کتاب ادب المفرد، محمد بن اسماعیل کی کتاب ہے، حدیث نمبر 10۔ ایک اثر ہے کہ ایک شخص آئے یمن سے، کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یمن سے آئے، کہاں آئے؟ مکہ۔ کتنی دوری ہے یمن سے مکہ کی؟ لگ بھگ 1000 کلومیٹر کی۔ یہاں سے دلی اتنی تقریباً اتنی دور، اور انہوں نے اپنے کندھے پر اپنی ماں کو سوار کیا اور حج کے لیے آئے تھے۔ کتنی مشقت، کتنی پریشانی اٹھائی۔ اونٹنی دھوکہ دے سکتی ہے، گرا سکتی ہے، لیکن میں اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شخص آئے تھے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو سوار کیے تھے، اور کہاں آئے؟ اللہ کے گھر حج کرنے آئے۔
और आकर कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, उन्होंने हज कर लिया, फिर उसके बाद से मैं अपने माँ को घर छोड़ दूंगा। पूछते हैं अब्दुल्ला बिन उमर, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? वो आज कर पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? उनका जवाब सुनिए, लातत बहू, तुमने एक सांस का भी हक अदा नहीं किया, तुमने एक सांस का भी हक अदा नहीं किया है, सिंगल एक सांस का भी हक अदा नहीं किया। कौन सांस? जब तुम्हारी पैदाइश हो रही थी, तुम्हारी विलादत हो रही थी, उस वक्त जो तुम्हारी माँ जो तकलीफें झेल रही थी, मौत और जिंदगी से लड़ रही थी, उस कंडीशन में जो तुम्हारी माँ की एक सांस थी, एक लम्हा था, उस एक लम्हे का तुमने हक अदा नहीं किया। बाकी तो छोड़ दीजिए, आप एक सांस का हक अदा नहीं किए। बताइए, वो यमन से लेकर मक्का आए थे, उतनी मशक्कत बर्दाश्त की, उतनी परेशानियां उठाई, अपनी माँ को सवार किया अपने कंधे पर और हज करने आए यमन से मक्का। ये है माँ का मकाम। यह हदीस हमें बतलाती है, यह हदीस हमें तालीम देती है कि माँ का मकाम कितना अफजल है। हमें भी चाहिए कि जिनके माँ बाप, जिनके माँ जिंदा है, वो चाहिए अपनी माँ की खिदमत करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें। और जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनके माँ को जन्नतुल फिरदौस में से मकाम अता फरमा, उनके गुनाहों को बख्श दे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 7 मकामात पर कहा है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। क्यों कहा? उनका मकाम कितना बड़ा है। सही इब्न हिब्बान की हदीस है, हदीस नंबर 425। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया, एक सहाबी आए और आकर अपनी बात बयान करते हैं। कहते हैं कि मेरे वालिद बहुत इसरार कर रहे हैं, मेरे फादर, मेरे बाप मुझे बहुत इसरार करे कि मैं निकाह कर लूं। मैंने निकाह कर लिया, उनके कहने पर मैंने निकाह कर लिया, फिर कह रहे हैं उसे तलाक दे दो। उनके कहने पर मैंने निकाह किया था और फिर कह रहे हैं कि उसे तलाक दे दो, उस औरत को तलाक दे दो, छोड़ दो। हमारी नियत में शक की जा सकती है, लेकिन सहाबा की नियत में शक नहीं की जा सकती। उन्होंने किस वजह से कहा था? अच्छा, वो जो आए थे सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, क्यों आए थे? क्योंकि उस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते तो किसके पास जाते? वो किससे सवाल करते? नबी सल्लम के पास। ये हदीस हमें ये तालीम देती है, हदीस हमें ये बतलाती है, हमारे यहाँ आपका कोई भी मैटर का सवाल हो, क्वेश्चन हो, हमें किससे करनी चाहिए? किससे दलीलें मांगनी चाहिए? कायनात के इमाम का तरीका लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम तलाक दे दो अपनी बीवी को, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा, ये फतवा नहीं दूंगा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, और ना ये भी मैं तुम्हें फतवा दूंगा कि तुम अपने बाप की नाफरमानी करो, तुम अपने फादर की नाफरमानी करो, उनकी बात ना मानो। मैं ये नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नबी की एक हदीस सुना देता हूं, एक हदीस सुना देता हूं, एक हदीस कि बाप जन्नत का औसत दरवाजा है। जो बाप है जन्नत का दरमियानी यानी मेन गेट है, बाप जन्नत का मेन गेट है, मरकज है बाप जन्नत का। उस शख्स ने, उस सहाबी ने कहा, उस औरत को तलाक दे दिया। और इन बात उन्होंने हजरत उस सहाबी ने किस वजह से तलाक दे दिया? क्या उस सहाबी ने जो फतवा दिए थे उस बात पर, उनकी राय पर नहीं। उन्होंने हवाला किसका दिया? नबी वसल्लम का। क्योंकि सहाबा ही जानते थे कि क्या कहते हैं, हमारा जीना हमारा मरना किसके लिए है? नबी वसल्लम के लिए है, अल्लाह उसके रसूल के लिए है। हमें भी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, हम अपने गिरबान में झांके कि हमारे अंदर वो है जज्बा कि हमारा इमाम, हमारा आलिम, हमारा मुफ्ती, हमारे शेख उल हदीस, हमारा इमाम, क्या वो भी ऐसे ही फैसला देता है, वो भी ऐसे ही फतवा देता है जो नबी वसल्लम ने दिया है? वो हवाला किसका बताता है? ये हमें देखना चाहिए। और हमारे आलिमों में, हमारे इमामों में वही जज्बा होना चाहिए जो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु में जज्बा था, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु में जज्बा था। उन्होंने हवाला बताया तो किसका बताया? कायनात के इमाम का।
हमारा भी जीना मरना, हमारा भी हर चीज किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह उसके रसूल के लिए। हर काम किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह उसके रसूल के लिए। क्योंकि वो सहाबी ये बात जानते थे। सही बुखारी हदीस है, हदीस नंबर 7257, ला ताअत फी मासिया इन्नमा ताअत फी मारूफ। नो ओबीडियंस फॉर इविल डेट्स। कोई इबादत नहीं, किसी की इबादत हलाल नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी में किसी के इताअत हलाल नहीं है, कोई भी हो, कितना बड़ा फर्द हो। माँ की भी इताअत उसमें हलाल नहीं है। अगर रब की नाफरमानी हो रही है तो माँ की बात को छोड़ देना है। रब की नाफरमानी हो रही हो तो वालिद की बात को छोड़ देना है, पेरेंट्स की बात को छोड़ देना है। अगर रब की नाफरमानी हो रही हो, टीचर की, उस्ताद की बात को छोड़ देना है। रब की नाफरमानी हो रही हो, दोस्त अहबाब की, अपने से बड़े की बात को छोड़ देना है जहां पे रब की नाफरमानी हो रही हो। व्हाट इज गुड, जहां अच्छी बात हो वहां मान लेनी है, नेकी की बात हो वहां मान लेनी है। अगर कुरान कह रहा है, हदीस कह रहा है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं नमाज पढ़ो, और वालिदैन कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, मदर एंड फादर कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है, तो आपको नमाज पढ़नी है, अल्लाह के रसूल की बात को लेना है, पेरेंट्स की बात को छोड़ देना है। रसूल सल्लम कह रहे हैं कि तुम रोजा रखो, पेरेंट्स कह रहे नहीं रखो, तो किसकी बात को माननी है? अल्लाह की बात को माननी है, उसके रसूल की बात को माननी है, कुरान हदीस की बात को माननी है। अल्लाह की नाफरमानी में किसी के दांत हलाल नहीं है। इस हदीस को जानते थे। हमें भी चाहिए तो अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की नाफरमानी में किसी के इताअत हमें नहीं करनी चाहिए। और जिनके माँ बाप जिंदा है, हमें चाहिए अपने माँ बाप की इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनके साथ अच्छे से पेश आए, उनकी बात माने। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। और जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है, जिनके वालिदैन, जिनके पेरेंट्स दुनिया में जिंदा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्श मग़फ़िरत फरमा, उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, उनके दर्जात बुलंद अता फरमा। ए अल्लाह जहां मुसलमान परेशानी हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। ए अल्लाह जहां मुसलमान बीमार है उनको सेहत अता फरमा। ए अल्लाह जहां मुसलमान कर्जदार है उनको कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा। ए अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।